السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ وربطنا على قلوبهم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نوجوان اپنے دین کے خاطر غار میں گئے تھے اور غاروں میں جانے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، ہم نے ان کے دلوں پر ڈھارس بنا دی اور ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دی اور ان کو جسارت اور قوت بخش دی۔ کس بات کی؟ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ڈرے نہیں، اس لیے ہم نے ان کے دل میں طاقت پیدا کر دی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وربطنا علی قلوبہم۔ ربط یربط ربطن کا معنی ہوتا ہے طاقت دینا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر ڈھارس بنا دی، طاقت دے دی۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے وقویناہا، یعنی ان کے دلوں کو ہم نے تقویت دی۔ کس کے ذریعے سے؟ بالصبر علی ہجران الاوطان، وطنوں کے چھوڑنے پر صبر کرنے کے ذریعے، والفرار بالدین الی بعض الغیران، اور دین کے ساتھ بعض غاروں کی طرف بھاگنے کے ذریعے، وجسرناہم الی القیام بکلمۃ الحق، اور ہم نے ان کو جسارت دی، جسرناہم، اور ان کو جسارت دی، جسارت کو مطلب قوت دی، الی القیام بکلمۃ الحق، کلمہ حق کو انجام دینے کی اور کلمہ حق کو بولنے کی، والتظاہر بالاسلام، اور اسلام کو ظاہر کرنے کی طاقت دی۔ کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوں۔ کس کے سامنے کھڑے ہوں؟ بین یدی الجبار۔ یہاں پر جس کے سامنے کھڑے ہوں اس کو ذکر نہیں کیا گیا قرآن پاک میں۔ صاحب تفسیر فرماتے اذ قاموا بین ید الجبار، جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، وہ ہوا دقیانوس، اور وہ ظالم بادشاہ دقیانوس ہے۔ من غیر مبالات بھی، تو جب اس کے سامنے کھڑے ہوں تو بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی خوف و خطر کے کھڑے ہو جائیں۔ حین عاتبہم، جب وہ بادشاہ ان پر سرزنش کرے، علی ترک عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کے چھوڑنے پر، کہ انہوں نے بتوں کی عبادت کیوں چھوڑی، اس پر جب بادشاہ سرزنش کرے تو اس کے خوف کھائے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی پرواہ کے اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور اس بات کی ہم نے انہیں طاقت دے دی۔ اور جیسا ہی ہوا کہ ان کے دل کو اللہ نے طاقت دی، ڈھارس بنائی، تو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا، تو وہ بولے ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ اور یہ بات انہوں نے مفتخرین، فخر کرتے ہوئے کہی، یعنی اور فخر وہی کرے گا، وہی فخر کرتے ہوئے بول سکتا ہے جو ڈرے گا نہیں۔ تو اللہ نے چونکہ ان کے دلوں میں طاقت بخش دی تھی تو انہوں نے بغیر خوف و ہراس کے فخر کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کہا ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے، یعنی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہی ہمارا رب ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا اور ہم کسی بت کی عبادت نہیں کریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو بھی الہ نہیں مانیں گے۔ وَلَئِن سَمَّيْنَا، اب وَلَئِن سَمَّيْنَا سے صاحب تفسیر آگے آنے والی آیت کریمہ کا ربط جوڑتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَةً، اور اگر ہم نے ان کو یعنی بتوں کو معبود بنا لیا، معبود اگر ہم نے ان کا نام رکھ دیا، ان کو ہم نے معبود اگر ہم تسلیم کر لے، لقد قلنا اذا شططا،
तब तो हमने बात हद से बड़ी बात कह दी। शतत का माना होता है दूर की बात। कुल्ला इज़न शतता, इज़न ये तो ज़र्फ है, कुल्ला शततन जो है ये मफऊल मुतलक होने की बिना पर मंसूब है। तो इसीलिए साहिब तफसीर फरमाते हैं, आपको ये एतराज ही कर सकता है कि शततन ये मफऊल मुतलक कैसे हो गया। मफऊल मुतलक तो वो होता है जो फेल मज़कूर के माना में हो, तो यहाँ पर फेल मज़कूर जो है वो कुल्ला है और शततन ना ही उसके माना में है, क्योंकि कुल्ला ये कहने के माना में और शततन दूर के माना में है, तो उसके माना में भी नहीं है और ना लफ्ज में उसके है, तो ये मफऊल मुतलक कैसे बन गया। तो साहिब तफसीर उसकी तरफ, उस जवाब की तरफ इशारा फरमाते हैं कि यहाँ पर शततन ये सिफत है और इसका मौसूफ महजूफ है। असल इबारत है लक़द कुल्ना इज़न क़ौलन शतता, क़ौलन ज़ा शततिन, शतत का माना दूरी, तो माना होगा तब तो हमने। तो अब यहाँ पर क़ौलन ज़ा शततिन, क़ौलन मौसूफ ज़ा शततिन बतरकीब इज़ाफ़ी होकर सिफत मौसूफ सिफत से मिलकर फिर कुल्ना का मफ़ऊल मुतलक हो जाएगा। ये लक़द कुल्ना इज़न शतता, तब तो हमने हद से बड़ी हुई बात, दूर की बात कह दी। अगर हम अल्लाह के सिवा और को और बुतों को अगर माबूद मान लें तो तब तो हमने दूर की बात कह दी। क़ौलन ज़ा शततिन, ऐसी बात कह दी जो दूरी वाली है। वल इफ़रात फी ज़ुल्म वल इबआद फीह, और जुल्म व ज़्यादती में इफ़रात और कसरत और बहुत ज्यादा दूर का जुल्म हो गया। ये शतत किससे बना है? साहिब तफसीर फरमाते मिन शत्ता यशुत्तो, ये शत्ता यशुत्तो से बना है। और शत्ता यशुत्तो का माना है, कहा जाता है शत्ता फुलानुन है इज़ा अबअदा, इज़ा बअदा, जब वो दूर हो गया हो। तो कौलुन शतत यानी है कौलुन बईद, हमने दूर की बात ये कह दी, ये माना होगा। हाउलाए कौमुना इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये लोग बोले, यानी जो नौजवान भाग कर गए थे, ये लोग बोले ये हमारी कौम है। हाउलाए से इशारा अपनी कौम ही की तरफ है, तो जब इशारा कौम की तरफ है तो कौमुना आगे कहना ये हाउलाए का बयान है। इसीलिए साहिब तफसीर फरमाते हैं अत्फ़ो बयान, ये कौमुना जो है ये अत्फ़े बयान है हाउलाए का, क्योंकि हाउलाए से उनकी कौम ही की जानिब इशारा था। फिर भी कौमुना जिक्र कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने यहाँ पर कौमुना का जिक्र किया है, तो ये अत्फ़े बयान है। और ये जो है मुब्तदा वाक़े है हाउलाए, तो हाउलाए मुब्तदा है और ये कौमुना जो है उसका अत्फ़े बयान है। गोया कि ये कहो हाउलाए मातूफ है, कौमुना उसका अत्फ़े बयान मातूफ है, अपने अत्फ़े बयान से मिलकर मुब्तदा है। और इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये उसकी खबर है। तो अब माना होगा ये हमारी कौम है, इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, जिसने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए। इत्तखज़ यत्तखिज़ु बना लेना, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, आलिहा इलाह की जमा, इसका माना माबूद, जिसने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए। सारे तफसीर फरमाते हैं खबरुन, ये इत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहा ये खबर है। तो ये खबर उन्होंने ये जो खबर दी, ये खबर थोड़ी दी है कि हाउलाए कौमुन इत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा को माबूद बना लिया, ये खबर नहीं दी थी, क्योंकि वो तो खबर तो उन लोगों को मालूम ही थी। तो इनका ये खबर देना ये इनकार के माना में है, यानी इस अंदाज में उन्होंने कहा एक ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा को माबूद बना लिया है, तो मतलब इनकार के तौर पर है कि यानी इनको अल्लाह के सिवा किसी पत्थर या किसी बुत को माबूद नहीं बनाना चाहिए था। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं खबरुन, ये खबर है, वह हुआ इखबारुन फी मानल इनकार, ये इखबार है माने इनकार में, यानी इनकार करने के माना में। गोया कि वो अपने लबो लहजे से ये कहते हैं कि इनको अल्लाह के सिवा किसी बुत वगैरह को माबूद नहीं बनाना चाहिए। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, लौला ये तहदीद के लिए है, उभारने के लिए है। लौला यअतूना अलैहिम, ये लोग उन पर क्यों कोई खुली दलील नहीं लेकर आते। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये लोग इन बुतों की इबादत पर या इन बुतों के माबूद होने पर खुली दलील नहीं ला पाए, फिर भी उन्हीं को पूजे,
تو پھر تو یہ اللہ پر افترا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کی جانب یہ فمن ازلم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ من افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر کذب اور جھوٹ باندھا، افترا کیا۔ لولا یاتون علیہم، تو لولا بما ابھارنے کے لیے ہے، یعنی انہیں ابھارا جا رہا ہے اس بات پر کہ دلیل لے کر آؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا یہ بت تمہارے معبود ہیں تو اس پر دلیل لے کر آؤ، اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی انکار ہی کے لیے، ان کو خاموش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دلیل تو لا نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کو خاموش کرنے کے لیے یہ ابھارنا ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں لولا اے حل لا یاتون علی عبادتہم، کیوں ان کی عبادت پر، تو علیہم یہاں قرآن نے فرما دیا، اصل میں ہے علی عبادتہم، تو ان بتوں کی عبادت پر کیوں یہ نہیں لاتے بسلطان بین، ایک کھلی دلیل۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں علی عبادتہم فحذف المضاف، یہاں پر علیہم کے بجائے یہاں پر مضاف محذوف ہے، علی عبادتہم کے معنی میں ہے، تو یہاں پر مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ بسلطان بین، سلطان کا معنی ہوتا ہے دلیل اور بین کا معنی ہوتا ہے واضح، اسی لیے اس کی تفسیر فرماتے ہیں بحجت ظاہرہ، یعنی ظاہر کوئی حجت اور دلیل لے کر آئے، وہ ہوا تبکیت، اور یہ ان کو حقیقت میں ابھارنا نہیں ہے، یہ ابھارنا بھی لولا کے ذریعے سے در حقیقت تبکیت کے لیے ہے، ان کی بےخنی کے لیے ہے، اور ان کو خاموش کرنے کے لیے ہے، اور وہ تبکیت، اور یہ تبکیت ہے، ان کو مبہوت کرنا ہے، لاجواب کرنا ہے۔ کیوں؟ لأن الاتيان بالسلطان على عبادت الاوثان محال، کیونکہ بتوں کی عبادت پر دلیل لانا محال ہے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، بالنسبت الشریک الیہ، اور اس کے شریک کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو شریک کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو شریک ٹھہرایا عبادت میں، تو اللہ کے ساتھ ایک شریک ٹھہرانا یہ در حقیقت اللہ پر کذب کا بہتان کرنا ہے اور کذب باندھنا ہے، اور کذب باندھنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر کذب کا افترا کرے۔ اب وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے دور ہو، یہاں پر جو نوجوان تھے وہ بعض کو خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے دور ہو، کن سے؟ ان کافروں سے دور ہو، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یعنی بت، ان بتوں سے جب تم دور ہو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ سے دور نہ ہو، فأووا الی الکہف، تو تم سب، ہم سب مل کر کہف کی طرف پناہ لے لو، یہ ہے اس کا معنی۔ اب دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو خطاب کر رہے ہیں، اسی کو صاحب تفسیر نے کہا ہے خطاب من بعضهم لبعض، ان میں سے بعض کو خطاب ہے یہ۔ حین صممت عزیمتهم علی الفرار بدینہم، جب ان لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ بھاگنے پر عزم مصمم کر لیا، تو بعض نے بعض کو یہ خطاب کیا کہ جب تم ان لوگوں سے یعنی کافروں سے دور ہو جاؤ، وما یعبدون، اور ان سے دور ہو جاؤ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اب وما یعبدون میں ما موصولہ ہے، اور وما یعبدون اس کا عطف ہے اعتزلتموہم کی، ہم جو ضمیر منصوب ہے اس پر عطف ہے، جب اس پر عطف ہے تو یہ بھی محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں نصب، یہ وما یعبدون یہ نصب منصوب ہے، عطف علی الضمیر، جس کا عطف ہے ضمیر پر، اعتزلتموہم میں ہم جو ضمیر ہے اس پر عطف ہے۔ اب معنی کیا ہوگا اس پر عطف ہونے کا؟ معنی تو میں نے بتا دیا، صاحب تفسیر بتا رہے ہیں، معنی ہوگا یعنی مطلب ہوگا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ مَعْبُودِيهِمْ، جب تم ان سے دور ہو جاؤ اور ان کے معبودان باطلہ سے دور ہو جاؤ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ سے دور نہ ہو۔ تو الا اللہ، یہ اللہ میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر استثناء متصل ہو
तब तो माना ये होगा वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग अल्लाह की भी इबादत करते हैं, तभी तो इस्तिस्ना मुत्तसिल होगा। मा कब्ल का हुक्म अल्लाह के लिए भी साबित होगा, तो अल्लाह की भी इबादत भी करते हैं, यानी बुतों के साथ साथ अल्लाह की भी इबादत करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये मुशरिकीन मक्का की तरह थे। और अगर इल्ला को इस्तिस्ना मुनक़ता माने तो अब ऐसी सूरत में ये होगा कि मा यअबुदूना इल्लल्लाह, और वो जिसकी इबादत करते हैं, यानी वो तो सिर्फ बुतों की इबादत करते हैं, इल्लल्लाह गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो अब ये इस सूरत में यहां पर इल्ला इस्तिस्ना के माना, इस्तिस्ना मुनक़ता के माना में हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में माना सही हो जाएगा, चाहे इस्तिस्ना मुत्तसिल माने या इस्तिस्ना मुनक़ता माने। लेकिन ये पूरी तकरीर हमारी उस सूरत में है जबकि वमा यअबुदूना में माँ को मौसूला माने। माँ को अगर नाफिया माने तो माना होगा वैसे एतज़लतुमूहुम, जब तुम उनसे दूर हो जाओ। वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और ये लोग इबादत नहीं करते हैं मगर अल्लाह की। फ़अबू इलल कहफ़, तो तुम सब जुदा हो, सब तुम पनाह ले लो कहफ और गार की। तो अब यहां पर वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, ये बीच में जुमले मुअतरिज़ा होगा जिसका ताल्लुक मा कब्ल से नहीं होगा। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं इस्तिस्ना मुत्तसिल। इल्लल्लाह ये इस्तिस्ना मुत्तसिल है, और इस्तिस्ना मुत्तसिल में क्या होता है कि मुस्तस्ना के लिए वही हुक्म साबित होता है जो हुक्म मा कब्ल वाले के लिए साबित होता है, यानी वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, यानी और उससे तुम दूर हो जाओ जिसकी वो इबादत करते हैं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी वो अल्लाह की भी इबादत करते हैं लेकिन तुम अल्लाह से दूर मत हो, ये माना है। लिअन्नहुम कानू युक़िरूना, इस्तिस्ना मुत्तसिल माने तो माना होगा कि वो लोग अल्लाह की भी इबादत करते थे। तो अब वही बता रहे हैं साहिब तफसीर, लिअन्नहुम कानू युक़िरूना बिल खालिक, क्योंकि वो लोग खालिक का इकरार करते थे, व युशरिकूना मअहू गैरह, और उसके साथ खालिक के साथ उसके अलावा बुतों को शरीक ठहराते थे, का अहले मक्का, अहले मक्का की तरह। और मुनक़ते, या इस्तिस्ना मुनक़ते है। अब इस्तिस्ना मुनक़ते होगा तो अब इसका मतलब ये होगा कि वो अल्लाह की इबादत ही नहीं करते थे कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, वो सिर्फ और सिर्फ बुतों की इबादत करते थे। तो उसी का माना बता रहे हैं वइज़ अतज़लतुमुल कुफ़ारा, यानी एक दूसरे को खिताब किया कि जब तुम कुफ़ार से जुदा हो, वल असनाम, और उन बुतों से जुदा हो, अल्लती यअबुदूनहा, जिन बुतों की वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर वो जिन बुतों की इबादत करते हैं। तो ये इस्तिस्ना मुनक़ता की सूरत में माना होगा। बस फर्क इतना है कि इस्तिस्ना मुत्तसिल की सूरत में ये साबित होगा कि वो बुतों की भी इबादत करते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं, और इस्तिस्ना मुनक़ता की सूरत में ये होगा कि वो सिर्फ बुतों की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा नहीं करते हैं। ये माना होगा, दोनों माना दुरुस्त हैं। और होगा कलामु मुअतरिज़, या मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ को मौसूला ना मानकर माँ को नाफिया माने। तो माना ये होगा कि ये लोग जो है, यानी ये जो नौजवान लोग जो कि भागे थे अपने दीन के साथ, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, है ना। तो ये जुमला मुअतरिज़ा बीच में हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में माँ को मौसूला ना मानकर माँ को नाफिया माना जाएगा। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं और होगा कलामु मुअतरिज़, ये कलाम मुअतरिज़ है, जुमला मुअतरिज़ा है बीच में। तो इख़बार मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से खबर है, अनिल फितिया, उन नौजवानों की, अन्नहुम लम यअबुदू गैर अल्लाह, कि वो नौजवान अल्लाह के अलावा की इबादत नहीं करते हैं। ये बीच में अल्लाह ने उनकी खबर दे दी है, तो ये जुमला मुअतरिज़ा भी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में माँ मौसूला नहीं होगा बल्कि माँ नाफिया होगा, माँ यअबुदूना में। फ़अबू इलल कहफ़, तो अब माकम से है वैसे अतज़लतुमूहुम, बाद ने बात को खिताब किया कि जब तुम काफिरों से और उनके बुतों से दूर हो जाओ, फ़अबू इलल कहफ़, अवा या अभी अवियन, इसका माना होता है पनाह लेना, किसी जगह को अपनी पनाहगाह बनाना। तो फ़अबू फ़िल अम्र है उसी से, फ़अबू इलल कहफ़, तो तुम सब गार की पनाह ले लो। ये इन्होंने आपस में खिताब किया। तो फ़अबू इलल कहफ़ का माना दो बता रहे हैं। एक तो ये कि फ़अबू, अवा या अभी का माना क्या होता है, किसी गार में हो जाना, गार में पहुंच जाना।
اور ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا، تو دونوں معنی ہوں گے۔ صاحب تفسیر فرماتے سیرو الیہ فابو الی الکہف اے سیرو الی الکہف، کہف کی طرف چلے جاؤ، غار کی طرف ہو جاؤ، اور اجعلوا الکہف مأواکم، یا کہف کو یعنی غار کو اپنا مأوا اور اپنا ٹھکانہ بنا لو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نصیحت کر دی، حکم دے دیا کہ جب تم چھوڑ دو تو کہف کو، غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ ینشر لکم، یہ جواب امر ہے کہ غار ہی میں رہو، اب تم اس سے مت ڈرو کہ غار میں کھانے پینے کو کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا، تو اسی کا جواب ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمتیں کھول دے گا۔ رحمت سے مراد رزق، یعنی اپنے طرف سے رزق کھول دے گا، رزق کے لیے مت گھبرانا، اس میں تم آرام سے غار کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی رزاق ہے، وہ اپنی رحمت اور اپنے رزق کے خزانے تمہارے لیے وہیں پر کھول دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ تہیئہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیار کر دینا اور کسی چیز کو آسان کر دینا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ مرفقہ، اس میں ایک قرات ہے مرفقہ، مرفقن یہ بھی ایک قرات ہے اور مرفقن یہ بھی ایک قرات ہے۔ یہاں پر دو قراتیں ہو گئی گویا کہ، ایک مرفقن اور ایک مرفقن۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں مدنی و شامی، یہ دونوں قراتیں جو ہیں ان میں سے ایک قرات مدنی ہے اور ایک قرات شامی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو مرفقن میم کے فتح اور فا کے کسرے کے ساتھ جو پڑھا گیا ہے وہ نافع مدنی، ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی جو کہ قرۂ عشرہ سے ہیں، ان دونوں حضرات کی قرات جو ہے مرفقن ہے، یعنی مدنی، یہ بھی مدنی ہے نافع مدنی، اور ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی، یہ دونوں قاری مدنی ہیں، ان کی قرات ہے مرفقہ، میم کے فتح کے ساتھ، را کے سکون کے ساتھ اور فا کے کسرے کے ساتھ، یہ قرات ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا مدنی جن سے مرفقہ، وہ شامی، اور شامی سے اشارہ کیا ہے کہ مرفقن جو ہے میم کے کسرہ، را کے سکون اور فا کے فتح کے ساتھ، یہ قرات جو ہے ابن عامر شامی کی ہے، ابن عامر شامی کی نہیں، بلکہ یہ کہو کہ مرفقہ یہ قرات جو ہے مدنی اور شامی دونوں کی ہے، یعنی نافع مدنی، ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی اور ابن عامر شامی، دونوں کی مدنی اور شامی دونوں کی قرات مرفقہ ہے، اور مرفقن جو ہے میم کے کسرہ اور را کے سکون اور فا کے فتح کے ساتھ، یہ ان تینوں حضرات کے علاوہ باقی لوگوں کی جو قرات ہے وہ مرفقہ ہے۔ اس وقت جو ہمارے یہاں پر بروایت حفص جو قرات کی جاتی ہے وہ مرفقہ کی جاتی ہے، باقی لوگوں کی مدنی اور شامی قرات مرفقن ہے۔ تو یہاں پر قرات کی طرف صاحب تفسیر نے مدنی جن و شامی جن کہہ کر کے اشارہ کیا۔ وَهُوَ مَا يُرْتَفَقُ بِهِ أَوْ يُنْتَفَعُ، مرفق اور مرفق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مرفق یا مرفق وہ چیز ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے یا جس کے ذریعے سے آسانی ہو، تو ما یرتفق بھی جس کے ذریعے سے انتفاع ہو، اے ينتفع جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے، جو آسانی پیدا کرے، وہ ہے مرفق کوئی بھی چیز۔ تو مانا ہوگا کہ تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کھول دے گا، یعنی اپنا رزق کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے سے آسانی پیدا فرما دے گا۔ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ، اب ان نوجوانوں نے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غار میں چلے جائیں گے ہم لوگ، اور وہاں پر اللہ رب العزت ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، پکا پورے طور سے انہیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، اس کے رحمت پر پورے طور سے ان کو یقین تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اسی کو صاحب تفسیر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ ثِقَةً بِفَضْلِ اللَّهِ، انہوں نے یہ بات اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہی، وَقُوَّةً فِي رَجَائِهِمْ، اور اپنی امیدوں میں مضبوطی کے پیش نظر کہی کہ ان کی امیدیں مضبوط تھی، کیوں؟ لِتَوَكُّلِهِمْ عَلَيْهِ، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، وَنُشُوعِ يَقِينِهِمْ، اور ان کے یقین کی مضبوطی تھی۔
او अखबरहुम बिही नबिय्युन, या एक सूरत यह है कि इन्होंने अपने भरोसे की बिना पर कहा जैसे कि बताया, या एक सूरत यह है कि इनके जमाने में कोई अल्लाह के नबी हो जिन नबी ने ये इनको दर्श दिया हो कि तुम वहां पर चले जाना, गार में चले जाना और वहां पर जाकर खौफ व खतर में मुब्तला मत होना, अल्लाह तुम्हारे लिए तमाम असबाब फराहम कर देगा, आसानियां पैदा फरमा देगा। किसी इनके जमाने में कोई नबी हो सकता है उन नबी ने इनको ये बात बताई हो। फरमाते औ अखबरहुम बिही नबिय्युन फी असरिहिम, या किसी नबी ने इनको ये बात बताई हो इनके जमाने में। वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन्ह। वतरा शम्स, और तुम सूरज को देखोगे, इज़ा तलअत तज़ावर, जब वो नमूदार होता है, तुलू होता है, तज़ावर तो कतरा जाता है, जब तुलू होता है सूरज तब कतरा जाता है। कहाँ कतरा जाता है? अनकहतिहिम, उनके गार से, यानी उनके गार के ऊपर से नहीं निकलता है बल्कि उनके गार की एक साइड से निकल जाता है कि जिसकी वजह से उनकी गार पर धूप नहीं आती है, दाईं जानिब से घूम कर चला जाता है और जब डूबता है तो उनकी बाईं जानिब से कतरा के निकल जाता है। वहुम फी फजवतिन मिन्ह, हालांकि वो खुली जगह में है उसके बावजूद उन पर धूप नहीं पहुंचती है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उनके ऊपर ये एहसान और फजल था कि वो पूरे दिन, सूरज भी निकलता था लेकिन पूरे दिन खुले मैदान में होने के बावजूद वो साये में रहते थे। इसी को कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वतरा तरस शम्सा, और ऐ देखने वाले, तो तरा से ये भी हो सकता है कि तरा से खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो, को ऐ नबी अगर तुम देखो तो तुम ये देखोगे कि जब सूरज निकले तो वो उनसे कतरा जाता है और एक साइड से यानी दाईं तरफ से माइल होकर चला जाता है। तो और ये भी इम्कान है कि तरा से खिताब हो हर उस शख्स के लिए जो भी कयामत तक आने वाला हो, यानी जो देखने वाला हो वो अगर देखे तो ये देखेगा कि सूरज उनकी तरफ से माइल होकर दाईं जानिब निकल जाता है और उनके ऊपर धूप नहीं आती है। फरमाते हो तरह शम्सा, तो तरा में दोनों इस्तेमाल है, नबी के लिए भी खिताब हो सकता है और हर देखने वाले के लिए भी ये खिताब हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर यही बता दूं कि यहाँ पर तरा से मुराद ये नहीं है कि नबी को हकीकतन देखने के लिए कह रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के तुम हकीकतन ये दो, मतलब ये है कि अगर देखने का मौका आए तो तुम अगर देखो तो तुम ये देखोगे कि धूप उनसे कतरा कर निकल जाती है। माना होगा वतर शम्सा, और तुम सूरज को देखोगे इज़ा तलाअत, जब वो तुलू होता है सूरज, तज़ावरो, तो वो फिर जाता है, माइल हो जाता है। तज़ावरो ये तफाउल से असल में था ततज़ावरो, तो तज़ावरो जाकी तखफीफ के साथ और जाके फतह के साथ तज़ावरो मुखफ़फ़ा, और उसके बाद जा के बाद अलिफ है तज़ावरो। ये एक किरात है, इसकी असल है ततज़ावरो। ततज़ावरो में एक ता को हज़फ कर दिया गया है तखफीफन, ठीक है। तो एक किरात जो कि हमारे यहाँ पर पढ़ी जाती है वो तो तज़ावरो ही है। और आगे साहिब तफसीर फरमाते हैं कूफियुन, यानी कूफी से इशारा है इस बात की तरफ कि तज़ावरो जो किरात है वो आसिम और इमाम हमजा और इमाम कसई की किरात है। ये तीनों हजरात कूफा के रहने वाले थे, इसलिए साहिब तफसीर ने फरमाया कि ये किरात कूफी है। और एक और किरात पेश कर रहे हैं आगे, तज़वर्रो। तज़वर्रो ये जो किरात है ये इज़वर्रा यज़वर्रो इज़विरार, जैसे कि एहमर्रा यहमर्रो एहमिरार, तो एहमिरार जैसे है वैसी तज़वर्रो भी एक किरात है। तज़ावरो में जैसे तज़ावरो एक किरात थी वैसी तज़वर्रो भी एक किरात है। ये तज़वर्रो जो किरात है, तज़वर्रो रा के तशदीद के साथ, जा के सुकून के साथ और रा की तशदीद के साथ, और इसमें अलिफ नहीं है जा के बाद, ये इज़विरार से है, जैसे कि एहमरार तहमर्रो ऐसी तज़वर्रो। ये किरात जो है इब्ने आमिर शामी की है, उन्होंने तज़वर्रो इसको पढ़ा है ना। और एक तीसरी किरात है इसी में
तज़ावरो गैरुहुम, तज़ावरो जो किरात है ये इन कूफी और शामी के अलावा दीगर लोगों की किरात तज़ावरो है, यानी जाके फतहा और दाए मुशद्ददा के साथ और जाके बाद अलिफ भी है, इनके अलावा दीगर जो कुर्रा हैं उनकी ये किरात है तज़ावरो। तो तज़ावरो की असली क्या होगी? तो कह रहे हैं कि तज़ावरो की असल जो है तज़ावरो ही है। और तज़ावरो में एक सर्फ का कायदा ये है कि बाब तफाउल या बाब तफाउल की जगह पर फा कलमे की जगह अगर जा आ जाए और ऐसे दूसरे भी हुरूफ हैं तो उनमें तो इसकी एक ता को उसी हर्फ से बदल कर फा कलमे से बदल कर इदगाम कर देते हैं। लिहाजा यहां पर तज़ावरो में जा आ गई तो अब ता को जा से बदल दिया और जा का जा में इदगाम कर दिया तो हो गया तज़ावरो। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं वह अस्लुहु तज़ावरो, ये तज़ावरो की असल तज़ावरो है, वह अस्लुहु तज़ावरो उसकी असल तज़ावरो है। फखुफ़िफ़ा तो यहां पर तखफीफ कर दी गई बेइदगाम ता फिर जा, इस तौर से ता को पहले जा से बदल दिया और फिर जा का जा में इदगाम कर दिया। और हज़्फ़िहा या हज़्फ़ कर दिया गया है एक ता को, है ना, तब भी तखफीफ हो जाएगी। और वल कुल मिन ज़बर, साहिब तफसीर फरमाते हैं चाहे क़िरात तज़ावरो हो, चाहे क़िरात तज़वर्रो हो, चाहे क़िरात तज़ावरो हो, तीनों क़िरातें अगर देखें हम तो इनका मादा ज़बर है, जे वाओ रे, और वाव के फतेह के साथ ज़बर। ज़बर का माना होता है माइल होना, और इन तमाम में क्या है? माइल होने का ही माना है कि सूरज या धूप जो है वो माइल होकर निकल जाती है, कतरा जाती है ना। वह मिन हो ज़ारहू, इसी से है ज़ारहू, कहा जाता है ज़ारहू, उसने ज़ियारत की यानी उसकी तरफ वो माइल हुआ। और एक लफ्ज होता है अज़ूर, जूर वाव के सुकून के साथ और जाके जम्मे के साथ अज़ूर, तो जूर का माना होता है झूठ। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं वज़ूर अलमैलु अनिश्चित, जूर कहते हैं सच्चाई से माइल होना, सच्चाई से रूगर्दा होना, सच्चाई से मुंह घुमा लेना। अगर किसी ने सच्चाई से मुंह घुमा लिया तो जाहिर बात है वो झूठ की तरफ माइल हो जाएगा। इसलिए अज़ूर का माना झूठ होता है जबकि जबर का माना माइल होना होता है ऐसे। तो यहां पर तीनों किरातें जो हैं वो जबर से हैं माखूज, ना कि जूर से, ये ध्यान रहे। वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरो अन कहफिहिम, और तुम धूप को देखोगे या जब तुम सूरज को देखोगे जब वो नमूदार होता है, तुलू होता है, तज़ावरो तो वो कतरा जाता है अन कहफिहिम, उनकी गार से। गार से कतराने का मतलब तमील अनहु, यानी गार से मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ से चला जाता है। वला यक़अ शुआउहा अलैहिम, और सूरज की धूप की शुआएं उन पर, उन लोगों पर नहीं पड़ती हैं। किधर माइल हो जाता है उनकी कहफ से, उनकी गार से? ज़ातल यमीन, जेहतल यमीन। ज़ातल यमीन का माना जेहतल यमीन यानी दाएं जानिब माइल होकर निकल जाता है। तो हकीकत हुआ अल जेहतुल मुसम्मातु बिल यमीन, यमीन की हकीकत है वो जेहत जिसका नाम यमीन रखा जाता है। हकीकत में एक जेहते यमीन है, एक जेहते शिमाल है ना। तो जेहते यमीन एक होती है, एक नाम है एक जेहत का, 4 जेहते हैं ना, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, 6 जिहात है। तो दाएं बाएं यानी ये कह लो कि अरबी में उसको हम जेहतुल यमीन, जेहतुल शिमाल, जेहतुल खल्फ, जेहतुल अमाम, जेहतुल फौक और जेहतुल फौक के अलावा जेहतुल खल्फ और जेहतुल तहत, ये 6 जेहते हैं। तो यहाँ पर साहिब तफसीर ने कहा ज़ातल यमीन, यमीन की हकीकत है वो जेहत जो कि दाएं जानिब होती है जिसका नाम यमीन रखा जाता है। वह इज़ा गरबत तक़रिदुहुम, और जब सूरज डूबता है तक़रिदुहुम, क़रब यक़रिदु का माना होता है काटना, लेकिन यहां पर उनको काट देता है ये माना नहीं होता है, उनको छोड़ने के माना में है। यहां पर इज़ा गरबत, जब सूरज डूबता है, तक़रिदुहुम माना लुग़वी पहले बता रहे हैं तक़तउहुम,
यानी उनको काट देता है। लेकिन काटने का माना यहाँ पर क्या है तत्रुकुहुम, उनको छोड़ देता है, व तादिलु अनहुम, और उनसे मुनहरिफ हो जाता है। जब डूबता है तब भी मुनहरिफ हो जाता है। कहाँ किधर मुनहरिफ होता है? ज़ात शिमाल, बाईं जानिब। वहुम फी फजवतिन मिन, हालांकि वो गार की खुली जगह में है। तो फजवा का माना क्या है? खुली जगह। यानी अगर धूप वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना रोके तो वो ऐसी जगह में है कि धूप उस पर पड़ेगी। लेकिन उनकी करामत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दीन के खातिर उन पर यह फर्ज फरमा दिया कि वो खुली जगह में भी है, तो आसाइश और हवा और तमाम ठंडकों की आसाइश भी उन्हें मिलती है, कोई घुटन वगैरह भी नहीं होती है, और खुले होने के बावजूद उनकी अल्लाह की उनके साथ अल्लाह का फज़्ल ये रहता है, तो उन पर धूप भी नहीं पड़ती है। उसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं, फजवा का माना बताते ऐसी मुत्तसिन बिनल कह, यानी गार की कुशादा जगह में है वो। वल माना ये है अन्नहु फी ज़िल्लिन नहारहुम कुल्लाह, वो लोग पूरे दिन साए में रहते हैं। ला तुसीबुहुम शम्स फी तुलूइहा वला गुरूबिहा, ना ही सूरज के तुलू होने के वक्त और ना ही सूरज के गुरूब होने के वक्त धूप उन्हें नहीं पहुंचती है। मा अन्नहु फी मकानिन वासे, हालांकि वो कुशादा जगह में है, मुनफते खुली जगह में है। मारिदिन ले इसाबत शम्स, ऐसी जगह में है जहां पर सूरज की धूप पहुंचे। लौला अन्नल्लाह यहजिबुहा अनहुम, अगर अल्लाह उस धूप को उनसे ना रोके, तो अगर अल्लाह उनसे उस धूप को ना रोके तो जरूर उनको वो धूप पहुंचेगी। लेकिन अल्लाह उन पर यह फज़्ल फरमाता है। तो फी फजवतिन मिन, फजवा का माना क्या? इन्होंने क्या बताया? खुली जगह और ऐसी जगह जहां पर धूप पहुंचे, लेकिन फिर भी धूप नहीं पहुंचती है, तो ये उनकी करामत है। वकीला मुनफसिहन मिन गारिहिम, ये भी कहा गया है कि इंफिसाह का माना क्या होता है? खुली जगह, कुशादा जगह। और ये भी कहा गया है कि वो अपनी गार की कुशादा और खुली जगह में है। यनालुहुम फीह रौहुल हवा, जिनमें उनको हवा की ताजगी पहुंचती है। वह बरदुश नसीम, और नरमो नाजुक हल्की चलने वाली हवा की ठंडक भी उन्हें पहुंचती है। वला युहिस्सूना करबल गार, और वो गार की घुटन को महसूस नहीं करते हैं, गार की घुटन और गार की तकलीफ को महसूस नहीं करते हैं। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, यह अल्लाह की निशानियों से है। ऐ मा सनाअहुल्लाहु बिहिम मिन इज़बिरारि शम्स, जो अल्लाह ने उनके साथ ये किया, क्या किया? यानी सूरज का माइल हो जाना और सूरज का कतरा जाना। तालिअतुन व गारिबतन, यानी तुलू होने के वक्त और डूबने के वक्त। आयतुन मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मतलब ये है अन्नमा कान फी ज़ालिका शम्स तुसीबुहु शम्स वला तुसीबुहुम इख्तिसासन लहुम, यानी वो लोग ऐसी समत में थे कि जिस समत में धूप तो पहुंचे, वला तुसीबुहुम, हालांकि उनको वो धूप नहीं पहुंचती है। इख्तिसासन लहुम, उन्हीं के साथ ये इख्तिसास है बिल करामा, करामत के जरिए से। अल्लाह ने उन पर ये फज़्ल फरमा दिया है, ये उनकी करामत है जिसकी वजह से उन पर धूप नहीं पहुंचती है। आज की गुफ्तगू हम यहीं पर खत्म करते हैं, अज़ान हो गई है।